بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود اور آج کا خصوصی پروگرام پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سے۔ میرے پیچھے آپ کو پارلیمنٹ ہاؤس کی بلڈنگ نظر آ رہی ہے، جہاں آج صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے خطاب کیا ہے۔ ساتھ ساتھ میرے سامنے صحافتی جو تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے حکومت کے مجوزہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے اس کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہا ہے، یہ دھرنا دیا جا رہا ہے۔ مختلف صحافتی تنظیموں کے جو افراد ہیں وہ گزشتہ شب یہاں پہنچے تھے، رات بھر یہاں موجود رہے، آج دن بھر یہاں موجود ہیں۔ پاکستان کی جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، اس میں حکومت میں شامل جماعت بھی ہیں، اس میں اپوزیشن کی جماعتیں بھی ہیں، ان کے رہنما جو ہے وہ آج یہاں آ رہے ہیں۔ مسلسل ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ یہاں آتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ، بلاول بھٹو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ، شہباز شریف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، متحدہ قومی موومنٹ بھی آج یہاں پر آئی ہے۔ آج دن بھر یہاں کیا ہوتا رہا، یہاں جو آنے والے لوگ ہیں وہ کیوں جمع ہوئے ہیں، صحافیوں سے جو اظہار یکجہتی ہے اس کا مقصد کیا ہے، اور حکومت ایسا کیا کرنا چاہتی ہے جس پر صحافتی تنظیمیں، وکلا کی تنظیمیں، سول سوسائٹی کی تنظیمیں، پاکستان کی تمام سیاسی تنظیمیں متحد ہو گئی ہیں، جمع ہو گئی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم کسی صورت بھی یہ قانون سازی نہیں ہونے دیں گے۔ اور آج انہی لوگوں کا اجتماع جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سڑک پر نظر آ رہا ہے۔ لوگوں سے بات کریں گے، مختلف جو سیاسی لوگ ہیں ان سے بات کریں گے، جو صحافی رہنما ہیں، صحافتی تنظیموں کے رہنما ہیں ان سے بات کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ آج آخر اس پروگرام کا، اس دھرنے کا مقصد کیا ہے، اور کیوں جو ہے وہ آج کا یہ پروگرام پورے پاکستان میں ڈسکس ہو رہا ہے اور اتنا بھرپور مومنٹم بنا ہے۔ چلتے ہیں اس مقام کی جانب جہاں پہ صحافتی تنظیموں کے لوگ دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پی ایف یو جے کے دھرنے میں آئے تھے اور اب انہوں نے پی ایم ڈی اے کو بالکل مسترد کیا۔ مولانا صاحب کیوں اس کو اپنے ڈنڈا اتھارٹی کا؟ میرے خیال میں یہ جو میڈیا کے تمام لوگ اس پر متفق ہیں کہ یہ ان کی آزادی کو چھیننے کے لیے ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر ہم ایسے موقع پر اظہار رائے کی آزادی کے ساتھ مستقل قانون سازی، کبھی ای وی ایم، کبھی یہ کبھی وہ، لیکن وہ پھر صحافیوں کی مشورے سے ہونی چاہیے اور وہ اپنا ضابطۂ اخلاق خود بنائیں، تب جا کر اس پر مستقل عمل درآمد ہو سکے گا، ورنہ روز یہی ہوگا کہ حکومت کچھ کہتی ہے اور صحافی آزاد کچھ کہتے ہیں۔ نزدیک جو ہے کسی جمہوری ریاست کا تصور ہی ناممکن ہے جب جہاں میڈیا آزاد نہ ہو۔ پاکستان میں میڈیا آزاد نہیں ہے، یہ جمہوریت کے لیے اور ریاست کے لیے لانگ ٹرم میں بڑا نقصان دہ ہوگا۔ ہم میڈیا کے ساتھ ہیں جی، ہماری جو جمہوری کلچر یا جمہوری جدوجہد جو ہے اس میں میڈیا کی آزادی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ایک کارنر سٹون ہے، اور چاہے وہ ہمارے اوپر کرٹیسائز ہو رہا ہو یا کسی پہ کرٹیسائز ہو رہا ہو، لیکن میڈیا کی آزادی جو ہے سلب کرنا جو ہے وہ جمہوریت کا ویوہار ہے۔ میں آپ کو سب سے پہلی بات تو یہ بتاؤں کہ جہاں تک اظہار آزادی، اظہار رائے کی بات ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے۔ کوئی قانون اس قسم کا نہیں بنا جا سکتا جو کہ آئین پاکستان سے متصادم ہو۔ میں سب سے پہلی بات یہ بتاؤں کہ ابھی تک آج تک تو کوئی ڈرافٹ سامنے آ نہیں سکا۔ یہ خالی ہم لوگوں کی پلس دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ میڈیا والے، باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں کس حد تک ایک پیج پہ ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ ایک حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، آپ کا آئینی حق ہے، اگر وہ دبایا جائے گا، بعض دفعہ یوزر پر آتے ہیں تو وہ قانون کو آپ دیکھیں سبوتاج کر دیتے ہیں۔ انہوں نے نیا طریقہ کار جو ہے وہ استعمال کیا ہوا ہے کہ لوگوں کو دباؤ، آئین کو یکسر رکھ دیں، اور چھوٹی جو ہے قانون سازی کے ذریعے سے ادارے جو ان کو کنٹرول کیے جائیں۔ بیسک بات تو میں یہ بتاؤں کہ ڈکٹیٹر کے زمانے میں جو سینسرشپ تھی اس سے بری سینسرشپ جو ہے آج ہے، اور ان کی یہ خام خیالی ہے کس طریقے سے یہ میڈیا کو کنٹرول کر پائیں گے۔ یہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کے جو ناکامیاں ہیں ان کو لوگوں کے، عوام کے سامنے نہ لا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں عوام تو اب یہ سمجھ چکی ہے، اب یہ آخری اس جگہ پہ آ چکے ہیں کہ یہ عوام کو، صحافیوں کو، وکیلوں کو، ملازمین کو، ہر ایک کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ آخری وقت ہے انشاءاللہ تعالی ملک عوام ہم ان یوزرپر سے
जो कि सिविलियन रोल में जो है एक आमिर का रोल प्ले कर रहे हैं, उनसे हम निजात पाएंगे इंशाल्लाह। पीडीएम के तर्जुमान हाफिज अब्दुल्ला साहब, हाफिज साहब खुद आप तर्जुमानी करते हैं पीडीएम की, आज जो मीडिया जो सबका तर्जुमान है वो एक क्राइसिस में, आप उनके साथ आए हैं यहाँ इज़हार यकजहती के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हाफिज साहब, ये पीडीएम का फैसला था कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो एक मुजवज़ा कानून साजी और बिल हुकूमत लेके आ रही है, पीडीएम ने अक्सर इसको मुस्तरद किया है और पीडीएम ये ऐलान कर चुकी है बशमूलियत जमीयत उलमा इस्लाम और तमाम जमातें कि ये मीडिया की आज़ादी के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है, ये मीडिया की आज़ादी को सल्ब करने की एक नाकाम कोशिश है। और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और जमीयत उलमा इस्लाम मीडिया की आज़ादी के लिए मीडिया के साथ शाना बशाना खड़ी है और खड़ी रहेगी, क्योंकि इसको हम गैर एलानिया मार्शल समझते हैं मीडिया की आज़ादी के खिलाफ। इस किस्म की कवानीन आमिरियत में भी नहीं थी, इस किस्म की कवानीन डिक्टेटरशिप में भी नहीं थी, लिहाजा ये एक सियाह और काला कानून है, इसकी हम भरपूर मुखालफत करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत की तरफ से मीडिया की आज़ादी को कुचलने के काले कानून और ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करती है और आज हमारे आने का मकसद यही था कि हम सहाफ़ती बरादरी को अपनी मुकम्मल हमायत और यकजहती का इजहार करें उनके साथ और उन्हें यकीन दिलाएं कि हम इंशाल्लाह उनकी आवाज़ बन के पार्लियामेंट के अंदर मीडिया और सहाफ़ती बरादरी के लिए बोलेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त को पर ये पाबंदी का कानून नहीं है, उसका गला घोंटने का कानून, और करोड़ों रुपए के जुर्माने अपनी मर्जी से जो इदारा कायम इस मकसद के लिए किया जा रहा है, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान में सहाफ़त को जिंदा रहने दी जाए, इसके बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं। फैसल साहब, बिलावल साहब सुबह भी आए, अभी दोबारा आए, मौलाना साहब, पूरी अपोजिशन, तमाम सहाफ़ी तंजीमें, तमाम सिविल जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कितना बड़ा मोमेंटम, कितना बड़ा प्रेशर देख रहे हैं आप? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल भी अपनी नुमाइंदगी की, आज भी पार्टी के चेयरमैन यहाँ पर पहले आए सेशन से पहले, सेशन के बाद तमाम अपोजिशन जमातें यहाँ पर आई, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज किया। देखें, ये हुकूमत माजी में आपसे यहाँ पे चंद कदम के फासले पर धरना दिया था और जो उन्होंने मीडिया के हवाले से बातचीत की थी, हम कहते हैं उस पर मन अमल करें। जब वो हुकूमत पे आए हैं, वो ये चाहते हैं कि जो कोई भी शख्स उनके खिलाफ बात ना करे, अगर आप उनके खिलाफ प्रोग्राम करें तो आपको जो है ऑफ एयर कर दें, कोई बयान उनके खिलाफ लगाए तो उनको अपने इदारे से निकाल लिया जाए। जो भी ड्रैकोनियन लॉ ये लाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि वो चीज़ें हों। हम जब 2008 में पहली दफ़ा आए थे, हुकूमत में जब आए थे, हमने पहला काम ये किया था कि जो मीडिया के हवाले से जो भी जो है काले कवानीन थी, हमने ख़त्म किए। हम आज भी कहते हैं कि मीडिया की ज़बान बंदी नहीं की जाए, मीडिया को आज़ादी दी जाए, इसके लिए तालाबंदी नहीं की जाए। आज तारीख में पहली दफ़ा पार्लियामेंट में पार्लियामेंट गैलरी को ताले लगाए गए, सहाफ़ियों को जो है वो बंद कर दिया गया। वैसे बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि अताउल्लाह तारड़ साहब भी मौजूद हैं और कुंडी साहब भी मौजूद हैं। पीडीएम से वक्ती तौर पे राहें ज़रूर जुदा हो गई, लेकिन जो कॉज है तो मुश्तरका कॉज में खड़े हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट के खिलाफ कॉज है, उसमें भी साथ खड़े होंगे। देखिए, बात यह है, आज़ादी इज़हार राय, आज़ादी सहाफ़त, ये दो ऐसे कॉज हैं कि जहाँ पे इस पे सहाफ़ियों का, सहाफ़ती तंजीमों का खून पसीना शामिल है। वहाँ हमारी दो जमातों की भी इसके लिए बड़ी जद्दोजहद है। पीपल्स पार्टी की बिल्कुल हमारे से ज़्यादा है, मगर मुशर्रफ दौर में जो जद्दोजहद हमने मिलके चलाई, वो तारीख उसकी गवाह है। तो देखिए, जो इस तरह के कॉज हैं, आइन से मुतसादिम जो लेजिस्लेशन है, जहाँ पे बुनियादी हकूक़ को सल्ब करने की बात है, तो हम सीसा पलाई दीवार बन के इकट्ठे इसकी मुकाबला करेंगे, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। और पार्लियामान के अंदर हमारा बड़ा आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है और मैं समझता हूँ कि ये आने वाले दिनों में इसमें मजीद बेहतरी आएगी। ये ताकत का जोम है कि जी हमारे पास नंबर ज्यादा है, हम ज्वाइंट सेशन से पास करा लेंगे, हम ये कर लेंगे। ताकत का बिल्कुल जोम है, मगर इनको पता होना चाहिए कि जिस पार्लियामेंट से आप इस्लामाबाद की सेनेट की सीट हार सकते हैं और यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेटर बन सकते हैं, तो वहाँ पे आपके लोगों ने हमें वोट दिए हैं, तो आपका क्या ख्याल है, उनका हमारे से राब्ता नहीं है? फिर कुंडी साहब, ये जो है ना ड्राइविंग सीट संभालेंगे फिर इस मामले में भी, कि जिस तरह गिलानी साहब को जिताया, इस मामले में हुकूमत को फिर शिकस्त?
देखें, ड्राइविंग सीट तो PMLN के पास है, दोनों लीडर ऑफ द अपोजिशन इनके पास हैं। तो शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर लीडर ऑफ द अपोजिशन है, हमारे इनके साथ बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है पार्लियामेंट में। हमजा शहबाज साहब पंजाब में लीडर ऑफ द अपोजिशन है, हमारे उनके साथ भी हमारी पार्टी के मेंबरान की अच्छी कोऑर्डिनेशन है। और जैसे तारड़ साहब ने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर हमारी एक अच्छी कोऑर्डिनेशन चल रही है। और आज आप देखें कि पार्लियामेंट से जब वॉकआउट किया, पार्लियामेंट के अंदर भी एहतजाज हुआ, पार्लियामेंट के बाहर भी आज सारी अपोजिशन को आप इकट्ठे देख रहे हैं। और पॉलिटिक्स में डायलॉग्स होते हैं, अगर आप कह रहे हैं PDM से बाहर हैं, लेकिन PDM से बाहर का ये मतलब नहीं कि हमारे डायलॉग्स नहीं हो सकते। जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए आपका मैसेज और तारड़ साहब का कि क्या है कि किस तरीके से पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज मीडिया की आज़ादी के लिए सपोर्ट करेंगी? देखें, आज आपने तमाम अपोजिशन रहनुमाओं को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया, ये आपने एक स्टेज प्रोवाइड किया। इसके साथ साथ आपके साथ है कैंप लोगों ने इकट्ठा किया। तो आपके प्लेटफॉर्म पे तमाम अपोजिशन रहनुमा इकट्ठे हैं, तमाम पार्टीज इकट्ठी हैं। आप जो हमें आवाज देंगे, आप जिस फोरम पे कहेंगे, चाहे वो पार्लियामेंट में है, चाहे पार्लियामेंट के बाहर है, चाहे अदालत में है, चाहे रोडों पे है, चाहे जेलों में, चाहे सड़कों पे, हम आपके साथ हैं। आपका जी तारड़ साहब सॉलिडारिटी विद वो अंग्रेजी की कहावत है कि आई मे नॉट अग्री विद व्हाट यू हैव टू से बट आई विल फाइट विद माय लाइफ टू डिफेंड योर राइट टू से इट। तो मेरा तो ये कुलिया है कि मेरा इख्तलाफ होगा बहुत सारे लोगों के साथ, मगर ये जो मीडिया है, ये जो कैमरे की आंख है, ये जो अखबार की लिखारी हैं, ये नहीं लिखेंगे, कैमरे की आंख हकीकत नहीं दिखाएगी, तो इस मुल्क में जमहूरियत का कोई फायदा नहीं है। इस मुल्क में जो आपका आज़ादी इज़हार राय का हक है, ये बाकी तमाम हुकूक का जामिन है। यानी अगर आप मेरा जिंदगी का हक ले लें और मुझे बोलने की इजाजत ना हो, या मेरे बिहाफ पे मेरे लवाहिकीन को बोलने की इजाजत ना हो, तो वो हक तो गया। तो तमाम हुकूक जो बुनियादी हुकूक आइन में पाकिस्तान के शहरियों को मुयस्सर हैं, उनका जामिन आज़ादी इज़हार राय का हक है, और इस हक की जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं। बात है तारड़ साहब, इख्तिलाफ हो सकता है, एतराज हो सकता है, लेकिन जो प्रिंसिपल स्टांस है वो पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, वो जर्नलिस्ट कम्युनिटी के साथ है। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर जो काला कानून लाया जा रहा है, ये कामराना सोच की अक्कासी करता है। और मुल्क पे 3 साल से जो तसलसल है कि पहले सहाफियों का माशी कत्ल हुआ, उसके बाद गोलियां मारी गई, उसके बाद घर में घुसकर मारा गया, उसके बाद बच्चियों के स्कूल के बाहर से अगवा किया गया, जबान बंदी करने की कोशिश की गई, ये उसी का तसलसल है। जब वो हथकंडे नहीं चले तो ये हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सहाफियों के साथ, तमाम सहाफती तंजीमों के साथ, मीडिया के साथ, वर्किंग जर्नलिस्ट के साथ शाना बशाना खड़े होंगे और इस काले कानून, ड्रकोनियन कानून को पास नहीं होने देंगे। सब ये कानून साजी जो है वो तो लोगों की सहूलत के लिए होती है, उन्हें इंसाफ फराहम करने के लिए होती है। यहाँ कानून साजी लोगों को शिकंजे में जकड़ने के लिए और अपने मकसद के एजेंडे जो है उसको पूरा करने। देखिए, जब कोई कमजोर पड़ता है तो वो इस तरह की हरकतें करता है। और आपने देखा होगा कि जब भी डिक्टेटर्स के आखिरी दिन आए हैं, उन्होंने इसी तरह की हरकतें की हैं। ये डिक्टेटर आप इसको नहीं कह सकते, मगर डिक्टेटरों के लाए हुए लोग हैं। जो लाए हुए लोग हैं वो भी अपने आखिरी दिनों में यकीनन इसी तरह की हरकतें करते हैं, लोगों की आवाज बंद करते हैं, गले दबाते हैं। मेरा ख्याल है गला दब नहीं जाएगा, जिस तरह से पहले गए हैं उस तरह ये भी जाएंगे। रिएक्ट किया है लोगों ने, मतलब आज पॉलिटिकल पार्टीज, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, लॉयर्स, सहाफी सब एक पेज पे खड़े हैं, इसका कितना असर होगा इस यूनिटी? देखिए, या तो इनको वापस लेना पड़ेगा या अल्टीमेटली इसके नतीजे में इनको खुद जाना पड़ेगा। ये आप ये देख रहे हैं ना, ये चंद लोगों का टोला है, चंद लोगों का टोला। न्याजी तो आपको चेहरा नजर आ रहा है, इलवी तो जो है ये चेहरा है, मगर इनके पीछे जो टोला है, इनफैक्ट जो टोला है, जो आपके गले को बंद करना चाहता है, जो मेरे आवाज को बंद करना चाहता है, वो अल्टीमेटली नहीं रहेगा। इतना मोमेंटम बनता हुआ देख रहे हैं सेनेटर साहब? पहले भी मोमेंटम बन गया था, मगर पहले भी धोखा हुआ था, मगर शायद अब हम धोखे से निकल के आगे चलें। बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान साहब। कहते हैं मोमेंटम बनेगा, हुकूमत इसे वापस ले, अगर वापस नहीं लेती तो फिर ऐसी सूरत आ जाएगी जहां हुकूमत को जाना पड़ सकता है। आइए और लोगों से बात करते हैं। मुर्तजा अब्बासी साहब, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर अफनान, दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, क्यों आए हो आप यहाँ पे साफियों से? ये तो इज़हार यकजहती के लिए हम आए हैं। ये जो काला कानून है, इसके खिलाफ पार्लियामेंट में भी हमने एहतजाज किया है भरपूर, और आइन की बालादस्ती के हवाले से जो हमारी अपोजिशन जमातों की जदोजहद है, मैं समझता हूँ उसमें एक शिक ये भी शामिल थी कि मुल्क के अंदर अदलिया की आज़ादी के लिए हम इंशाल्लाह जदोजहद करेंगे। और ये मौजूदा हुकूमत ने जो पाबंदियाँ, कदगान और जिस तरह साफियों को अपनी मर्जी से और अपने एजेंडे पे चलाने के लिए जो तशद्दुद का निशाना बनाया, उसकी भी हम मजम्मत इंटेंशन क्या है भाई साहब इनकी?
किसकी इंटेंशन क्या है गवर्नमेंट की कि जी देखिए गवर्नमेंट तो सिर्फ अकायक कौम से छुपाना चाहती है, अपनी नाकामी छुपाना चाहती है और सहाफत का गला दबाना चाहती है ताकि उनकी मर्जी की जो है मीडिया पे बात आए। ये कभी नहीं हो सकता। सहाफत ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अकायक कौम के सामने रखे। ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए सब इदारों के गले दबाने के लिए तैयार है। ठीक है, पहले आपका दबा रहे थे, अब हमारे पे शुरू हो गए जी। ठीक, अफसान साहब, इंटेंशन क्या नजर आती है गवर्नमेंट की, मोटिव क्या नजर आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो मैंने मसवदा नहीं पढ़ा, लेकिन जो चीज़ें मुझे मेरे तक पहुंची हैं, किसी ने बताई हैं या किस तरह हुआ है, उसमें ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे 25 करोड़ रुपए का फाइन है और इंडिविजुअल पे 10 करोड़ रुपए का फाइन है। इसका मतलब ये है बेसिकली कि अगर कोई नेटवर्क, कोई टीवी चैनल गवर्नमेंट के खिलाफ बात करे, वो 25 करोड़ रुपए के 2-4 दफा फाइन करेंगे, खत्म हो जाएगा। हाई कोर्ट में राइट ऑफ अपील भी खत्म कर दिया। राइट ऑफ अपील भी खत्म कर दी। सुप्रीम कोर्ट का आपको पता है बैकलॉग लंबा है, तो बाय द टाइम आप पे फाइन होगा, आप यहाँ ऑफलाइन होंगे, उस टाइम आप ऑलरेडी यू विल करा दो और इतना खौफ पैदा कर दो वो आपका और इंडिविजुअल का ये है कि जरा 10 करोड़ रुपए आप बताएं कितने लोग होंगे पाकिस्तान में जो दे सकते हैं। तो और चलो कोई अगर होगा भी तो क्यों देगा, 10-10 करोड़ रुपए कितनी फाइन कराएगा। तो ये बेसिकली एक ड्रैकोनियन लॉ है जो कि हमारे मुल्क में आज़ादी राय के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए, कतगन लगाने के लिए, और ये हमेशा आमरों ने किया है। ये बड़े अफसोस की बात है कि ये हाइब्रिड निज़ाम और ये जो एक बदायर एक जमहूरियत एक बनाई हुई है, उसमें इस मुल्क के लोगों को 22 करोड़ लोगों को दबा रहे हैं। पहले इकॉनमी तबाह कर दी है, गरीब लोग जो है गरीब हो रहे हैं और पिस रहे हैं बेचारे, कहते हैं नौकरियां नहीं है, और अब ये जलालत शुरू कर दी है कि ये ऊपर से इस तरह के लॉ लाके पहले मीडिया का कोई हाल नहीं रहा, उन बेचारों का जो सही कसर रह गया वो भी खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर पलवशा साहिबा, सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। पलवशा साहिबा, क्या खौफ है कि मीडिया को कर्टेल करके क्या हासिल करना चाहते हैं, मोटिव क्या है? देखिए, ये चाहते हैं कि जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में बने हुए हैं और दुनिया में जो पाकिस्तान की हैसियत दिन ब दिन अकेली होती जा रही है और अपने मुल्क में हुकूमत जिस तरह से अकेली होती जा रही है, चाहे वो EVMs हो, चाहे मईशत हो, चाहे महंगाई हो, चाहे ये तमाम लोग हैं जो यहाँ एहतजाज कर रहे हों, वो आवाज़ जो है वो दब जाए और हर आदमी अपनी अपनी जगह पे चीखता रहे, लेकिन उसकी आवाज़ जो है बाकी मुल्क तक ना पहुंचे। लेकिन जैसे मैंने कहा, इससे पहले बहुत से लोगों ने ये आजमाया और मुंह की खाई, और इसी तरह ये हुकूमत भी अब ये आखिरी अपना जो हथकंडा है वो भी आजमा ले, और इसके नतीजे में भी इसी तरह हजीमत उठानी पड़ेगी जैसे हर मामले पे हजीमत उठानी पड़ी, और इंशाल्लाह इसमें भी यू टर्न ही लेंगे। साहब, ये अगर गवर्नेंस के इशू मीडिया हाईलाइट नहीं करेगा, कोई और चीजें नहीं करेगा, तो उसका क्या मकसद है कि वो इशू खत्म हो जाएंगे, अगर ये समझे कि जी? देखिए, असल बात ये है कि हमारे वजीर आजम साहब चाहते हैं कि आप वो पाकिस्तान रिपोर्ट करें जो उनके बकौल, वो एक नहीं दो पाकिस्तान जो बात करते हैं, ये उनका अपना एक ख्याली पाकिस्तान है जिसमें वो रहते हैं, उनके वजीर रहते हैं। जब उसके मुनाफी कोई बात होती है तो वजीर आजम साहब को हजम नहीं होती। तो बेसिकली वो सच की आवाज दबाना चाहते हैं, सच को सामने लाना नहीं चाहते, और उसके लिए चूंकि मीडिया एक बहुत बड़ा जरिया है आवाम तक सच पहुंचाने का, इसका गला घोंटने की तैयारी कर। ये जो आज सब पॉलिटिकल पार्टीज, जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन सब जमा हुए हैं, ये मैसेज तो क्या होगा कि ये सब लोग यूनाइट हो गए, हमने एक चीज की है, जो लोग ओपोनेंट हैं वो भी इकट्ठे हो गए हमारे। देखिए, जैसे मेरी बहन ने कहा कि शमा जब बुझने को आती है तो वो फड़फड़ाती है, इस वक्त इस हुकूमत की शमा फड़फड़ा रही है क्योंकि इसके बुझने का वक्त है। गलतियां कर रहे हैं। बिल्कुल जी। रुबीना खालिद साहिबा, पलवशा साहिबा की बात सुनी, कहते हैं हुकूमत गलतियां कर रही है, और गलती उस वक्त करती है जब शमा फड़फड़ा रही होती है, तो शमा फड़फड़ा रही है इस हुकूमत की। वेलकम बैक नाज़रीन। इस एहतजाजी धरने में आप बहुत सारे चेहरे देख रहे हैं, मिल रहे हैं। इम्तियाज आलम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज आलम साहब कल भी यहाँ पे थे, आज भी यहाँ पे हैं। मोमेंटम, कितने चार्ज लोग नजर आए, कमिटमेंट कितनी थी, और इस कमिटमेंट का अब इफेक्ट क्या होगा? मेरा ख्याल है ये लंबी स्ट्रगल है, आज ये कन्वेंशन से खत्म होने वाली नहीं है। इसमें बड़े अप्स एंड डाउन आने हैं, कुछ लोग छोड़ के जाएंगे, कुछ समझौते करेंगे, लेकिन ये PFU ये खड़ी रहेगी, और बिलअमूम शहरी माशरे से, सिविल सोसाइटी से, सोशल मीडिया से इन्हें बड़ी सपोर्ट मिलेगी। बाकी कुछ भागेंगे, कुछ खड़े रहेंगे, प्रेशर्स आएंगे, मुख्तलिफ और हथकंडे जो हैं वो होंगे। ख्याल है कि अब फोकस होना चाहिए कि फवाद चौधरी को सैक किया जाए, बरतरफ किया जाए। अब मुतालबा ये होना चाहिए। मेरा इंडिविजुअल सोच है फवाद चौधरी साहब की, आपको यह नजर आता है कि है कि मैं बड़ा पाटेखान हूँ और मैं इसका मौजूद हूँ,
تو ایسے موجود کی سزا یہ ہے کہ ہی شوڈ بی سیکڈ. समी साहब, हल क्या है? अब आ गए हैं, रोड पे भी आ गए हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, धरने भी दे रहे हैं, लीडरशिप भी साथ खड़ी है, सिविल सोसाइटी भी खड़ी है. अब हमने कितना स्टेप आगे बढ़ना है और कैसे बढ़ना है? दो बातें करूंगा. पाकिस्तान के सहाफ़ी जो है ना वो इस बात पर मुत्तफिक हैं. कुछ हमारे दोस्त जो अभी वो थोड़े से मैं समझता हूँ कि भटके हुए दोस्त हैं वो भी वापस आ जाएंगे. उन्हें रिलक्टेंट हैं, प्रेशर में हैं, कोई वो ये एंगेज है. बस वो इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं लोग, वो जिस तरह से प्लीड करते हैं केस. लेकिन मैं उनसे कहता भी हूँ, उनसे दरख्वास्त भी करता हूँ कि आप आएँ, अपनी सफ़ों में आएँ. आप इधर ही यहीं आप सजते हैं, यही आपका घर है. किसी के आपको कोई खुशामद की जरूरत नहीं है. शुड बी द वे कि क्या किस तरीके से अब ये आगे स्ट्रगल डायरेक्शन? देखें, दो चीज़ें हैं. सहाफ़ी तो निकल आए बाहर, आप न्यूज़ डायरेक्टर भी हैं, सब आ गए बाहर, एंकर्स भी आ गए. अब एक डिसाइसिव आपको हम उस मोड़ पे आ गए हैं कि जहां पर ये फैसला किया जाएगा कि अगर हुकूमत इस काले बिल को लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती है, दबाव डालती है, तो फिर जो आज़ाद मीडिया है वो मुकम्मल तौर पे हुकूमती खबरों का बाइकआउट करे. क्योंकि ये एक फाइनल जंग है. अगर ये अथॉरिटी बन गई तो फिर सबसे ज़्यादा सफ़र इससे मालकान भी होंगे, सहाफ़ी भी होंगे और सोशल मीडिया भी होगा. यानी हम तो आगे बढ़ गए हैं, चीजें हो गई, उनको भी उसी तरीके से आगे बढ़ना होगा. एक कलेक्टिव डिसीजन लेने होंगे तभी स्ट्रगल कामयाब होगा. जब तक कलेक्टिव डिसीजन नहीं होंगे, मैं ये कहता हूं कि अगर आज तमाम अखबारात, तमाम मालकान चैनल्स के ये फैसला कर लें कि जब तक हुकूमत इस बिल के हवाले से अपने फैसला विड्रॉ नहीं करती, हम हुकूमत की खबरें बतौर एहतजाज नहीं दिखाएंगे, किसी वजीर को नहीं दिखाएंगे, वजीर आजम को नहीं दिखाएंगे, तो ये गवर्नमेंट कितने दिन सस्टेन कर सकती है. बहुत शुक्रिया समी साहब. शहजाद इकबाल साहब, वेरी यंग एनर्जेटिक एंकर, आप देखते रहते हैं. शहजाद साहब, कितनी एनर्जी नजर आई आज आपको? मेरे ख्याल से इस प्रोटेस्ट में हर कोई मौजूद है. कैमरामैन से लेके आपके DSNG वर्कर्स, आपके रिपोर्टर्स, आपके एडिटर्स, एंकर्स, और मेरे ख्याल से यही तमाम लोग मिलकर एक इदारे को बनाते हैं. और आज इस प्रोटेस्ट को भी, जो मुझे लगता है कि बड़ा कामयाब है, और जो मैसेज हम देना चाहते थे हुकूमत को और ख़ास तौर पे वज़ीर इत्तलात को, जो कि ये PMDA लाना चाहते हैं, वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ से किया है. एक बुनियादी फ्लॉ जो मुझे नज़र आता है, अब तक जो फ्रेमवर्क इसका हमने देखा, एक तो ड्राफ्ट है ही नहीं हमारा, तो हमें पता ही नहीं एग्जैक्टली कानून क्या है. लेकिन जो फ्रेमवर्क है, इमरान खान हमेशा बात करते थे डिसेंट्रलाइजेशन की, कि ताकत भी अगर है, पावर है, तो वो आप निचले तबके तक लेकर आएंगे, ग्रास रूट लेवल तक. यहाँ पे चाहे प्रिंट मीडिया की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी हो या पेमरा हो, उन सबको सेंट्रलाइज किया जा रहा है. यानी ताकत एक शख्स के पास आ जाएगी, एक इदारे के पास आ जाएगी. ये उसका बुनियादी फ्लॉ है. और जो कॉन्सेप्ट वजीर आजम खुद बताते थे, ये उसके खिलाफ जाता है. दूसरा, गलत बयानी बहुत सारे इशूज पे की जाती है. अब ये कह रहे हैं, एक जो जवाब दिया जाता है कि हम वर्कर्स के और रिपोर्टर्स और जो जर्नलिस्ट हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहे हैं. तो एक डिवाइड करने की कोशिश है. यानी पहले ऑनर्स को कुछ और बोला, APNS को कुछ और, PBA तकसीम करने की कोशिश है ना, कि मालकान चाहते हैं कि एम्प्लॉइज के पास तहफ़्फ़ुज़ ना हो, हम उनको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होगा, उनकी तनख्वाह नहीं मिलेगी, वो हमारे पास आएंगे. लेकिन तारिक साहब, आप पूरा फ्रेमवर्क देखें इसका, उसमें कोई शिक नजर नहीं आती कि एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को, जर्नलिस्ट को कहाँ तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है. तो वो फ्रेमवर्क में है ही नहीं. जब सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, जब ड्राफ्ट आएगा तो उसमें होगा, फ्रेमवर्क में नहीं है. तो मेरे ख्याल से बहुत सारी गलत बयानियां हैं. और ट्रस्ट इसलिए नहीं पैदा होता क्योंकि इस हुकूमत का जो रवैया रहा है 3 साल तक मीडिया के साथ, जर्नलिस्ट की पिटाई हुई, कोई अगवा हुआ, कोई नहीं पकड़ा जाता, सेंसरशिप है, किसका इंटरव्यू करें, किसका नहीं कर सकते, क्या बात कही, क्या बुरा लगा, किसी चैनल को बंद कर दिया, किसी सहाफ़ी को टीवी पे नहीं आने दिया. जब ये 3 साल का कंडक्ट और रवैया होगा, तो आप बताइए कि बगैर ड्राफ्ट के कैसे आप मतलब भरोसा, क्योंकि जो 3 साल से जो नीयत है वो तो सामने आएगी. एग्जैक्टली. और फिर जितनी एम्बिग्यूटी हुई है शहजाद के, अभी तक आप पहले एक चीज फ्लोट करते हैं कि जी कॉन्सेप्ट पेपर है, फिर कोई ऑर्डिनेंस आ जाता है, फिर मुकर जाते हैं, ये है ही नहीं. भाई असल चीज तो आपने पेश ही नहीं की अभी तक. बिल्कुल. और कहा जाता है कि एक फ्रेमवर्क हमने दे दिया, एक कॉन्सेप्ट पेपर दे दिया है, उस पर हम तजावीज ले रहे हैं. लेकिन उस कॉन्सेप्ट पेपर पे जब खामियां बताते हैं तो कहते हैं नहीं, वो ड्राफ्ट में होगा. हम भरोसा करने के लिए तैयार हैं, चाहते हैं भरोसा करें, लेकिन जो चीजें हैं वो भरोसा करने वाली कोई स्टेप तो आप उठाएं. नासिर जैदी साहब, बहुत मुबारक हो आपका, बड़ा सक्सेसफुल शो, PFUJ के सेक्रेटरी जनरल. कहते हैं साफियों को मसला क्या है, वो हम तो उनके हुकूक के लिए बात कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन देने की बात कर रहे हैं, आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं? ये तो मालकान का मसला है. देखिए, बात ये है कि ये मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते हैं कि वो ये बात क्यों कर रहे हैं. वो हमेशा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं,
और फवाद चौधरी जो है वो डिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ फैलाने में सबसे आगे है। तो बात ये है कि पीएमडीए जो है वो प्रेस के हर फॉर्म को कंट्रोल करता है। क्यों आए हैं इस मुजाहरे में, क्या एतराज है आपको बेसिक पीएमडीए को? मेरे ख्याल में मीडिया के लिए चैलेंजेस हर दौर में रहे हैं, लेकिन बड़ी हैरान कुन बात है कि वो शख्स के जो अपने अपोजिशन के दिनों में मीडिया की आज़ादी को न सिर्फ अप्रिशिएट करता था बल्कि मेक श्योर करने के वादे किया करता था, आज उस जमहूरी दौर में अगर इस तरह के कवानीन लाए जा रहे हैं जिनको हम बिलाशुबा ड्रैकोनियन कवानीन कह सकते हैं कि आप खसूसी अदालतें बना रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा जो मीडिया ट्रिब्यूनल्स हैं वो जब कहा करते थे कि जेट ब्लैक टेररिस्ट के लिए बनाए जा रहे हैं, लगता है अब हमें आप टेररिस्ट डिक्लेयर करने जा रहे हैं, उस सफ में खड़ा कर दिया, उस सफ में हमें खड़ा कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि तनकीद तो बड़ी एक तवाना आवाज़ होती है जो हुकूमत को सही रास्ते में चलने में मदद देती है। तो अगर इमरान खान साहब अपने मददगारों को खोना चाहते हैं इस कानून के जरिए, तो मैं समझता हूँ कि फिर उनकी अकल पे हमें मातम करना चाहिए। ये आवाज़ें जो आज खड़ी हैं यहाँ पे, ये आपके दोस्त हैं या आपके दस्ते बाजू हैं या आपके मुखालिफ नहीं है, खुदा इन आवाज़ों को बंद मत करें। शिराजी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इमरान खान साहब ये जो इतने सारे लोग जमा हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, सहाफ़ी भी हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, लॉयर्स हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, तो इनकी बात सुने और सुने ज़रूर इस वजह से कि कहीं ऐसा ना हो कि पानी सर से ऊपर चला जाए और इसके नतीजे में जितनी बुराई है या जो खराबी है उसका मलबा जो है वो अल्टीमेटली आपके अपने ऊपर ही गिरेगा। मदी साहब, ये एक कॉमन कॉज है, आप भी यहाँ हैं, सारे सहाफ़ी हैं, बुनियादी मसला क्या है, एतराज़ क्या है इस अथॉरिटी के ऊपर कि भाई वो कहते हैं जी कोई मसला ही नहीं है, तो मालकान इस्तेहसाल करना चाहते हैं सहाफ़ियों का, हम रोक रहे हैं उसको। सर पहली बात तो हाफिज साहब बहुत शुक्रिया कि आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, और पहले भी आपने लास्ट टाइम इंटरव्यू किया था, मुझे जॉब दी थी आपने वक्त न्यूज़ पर बहरहाल अभी तो जॉब इंटरव्यू शायद मुमकिन नहीं होगा, लेकिन ये है कि जो आपने बात की है कि मसला क्या है, सर मसला जो है हुकूमत को असल में डिजिटल मीडिया से है, और माजरत के साथ आप लोगों से और अखबारात से शायद इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि उसको कर्टेल करना चाहते हैं। असल में जो फ्यूचर है आज़ादी राय का वो डिजिटल मीडिया है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में बड़ी तेजी से डिजिटल मीडिया जो है वो अपनी स्पेस बना रहा है, तो हुकूमत जो है सारों को डरा के तो सिर्फ डिजिटल मीडिया को एट द एंड ऑफ द डे वो कंट्रोल करने की कोशिश करे, क्योंकि अभी तक सिर्फ डिजिटल मीडिया इनके कंट्रोल में नहीं है, बाकी तो आप भी जानते हैं या मानते हैं कि वो काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं, पैमरा के जरिए कहें या इश्तिहारात के जरिए अखबारात को कहें। तो असल में ये सारा खेल जो है वो डिजिटल मीडिया के लिए ये सेज सजाई जा रही है। ऐसा से ये सब अफगानिस्तान में लोग कहें जी राय की आज़ादी नहीं है, आवाज़ उठाएं, पाकिस्तान की सड़कों पे जब ये नजर आता है तो लोग कहते नहीं कि ये तो यार क्या वहाँ से भी बुरे हालात हैं, क्या सूरत? मैं आपको हाफिज साहब बात बताऊं कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान से ज्यादा अच्छे हालात हैं। अच्छे हालात हैं? मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि मैं अशरफ गनी रजीम के आखिरी दिनों में भी वहाँ पर मौजूद था और तालिबान के शुरू के दिनों में भी वहाँ पर मौजूद था। अशरफ गनी की रजीम में वहाँ के सहाफ़ियों को हुकूमत से किसी किस्म की शिकायत नहीं थी इस तरह की कि सहाफ़ियों पर हमले हों या हुकूमतें ऐसा कानून बनाए। वहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन का ऐसा कानून बनाया गया था कि अगर सहाफ़ी किसी सरकारी इदारे में जाएगा तो सरकारी इदारा कभी उसे बाहर नहीं खड़ा होने देगा। ये वहाँ पर कानून है, इधर तो अंदर नहीं घुसने देते, यहाँ तो अंदर नहीं घुसने देते। तो तालिबान की जब हुकूमत आई तो 25 अगस्त को तालिबान के रहनुमाओं ने हमारे साथ मुलाकात की और उन्होंने कहा कि आपको हम पर तनकीद करने की भरपूर आज़ादी है, आप ऑब्जेक्टिवली अपना काम करेंगे, हम आपको तंग नहीं करेंगे। हालांकि ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि उनके साथ वो तो तालिबान से ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अभी तो ज़ाहिर है जुमा उन्हें 8 दिन हुए, अभी वक्त गुजरेगा तो पता भी चलेगा, लेकिन उनका जेस्चर ये था तालिबान ने। लेकिन पाकिस्तान में जब आप कंपैरिजन करते हैं तो सारे काम हुकूमत की तरफ से हो रहे हैं या हमारे रियासत की तरफ से हो रहे हैं, तो ये बड़ा एक अलमिया है। आदिल शाहजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आदिल साहब ये बताएं कि मतलब एज एन एंकर आपको क्या ग्रीवेंस है, क्या एतराज है इस कानून के ऊपर, क्या शिकवा है? देखें, एक तो मैं अपनी बात का आगाज इससे करूंगा कि पाकिस्तान की तमाम सियासी लीडरशिप, सिविल सोसाइटी यहाँ पर है, तो कुछ तो ऐसा होगा उस लॉ में। मैं और आप तो बैठ के कहेंगे कि जी इसमें ये खराब है वो खराब है, तो इसमें डेफिनेटली ऐसा कुछ है कि तमाम अपोजिशन जमातें जो एक साथ बैठ के टेबल पे खाना नहीं खाती थी, आज हमने यहाँ पे देख लिया सारे इकट्ठे हैं जदोजहद सहाफत के लिए और आज़ादी सहाफत के लिए। एक कोशिश है कि सहाफ़ी जो हैं वो एक सेल्फ सेंसरशिप की मोड में चले जाएं, क्योंकि अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है और उसके बाद ये एक 2
जो मेन स्ट्रीम सहाफ़ी हैं उनके साथ इसी तरह का सलूक करते हैं, ट्राइब्यूनल्स में भिजवा देते हैं, उनको ऑफ एयर करवा देते हैं, उन पर करोड़ों के जुर्माने लगा देते हैं, तो फिर हम जैसे जो लोग हैं हम दिल्ली एग्जैक्टली सो एक सेल्फ सेंसरशिप की उसमें मोड में धकेलने के लिए ये एक है। लेकिन साथ में हमें एक दूसरी चीज सोचनी होगी, और वो ये कि जो वर्कर सहाफ़ी है, जो रिपोर्टर्स हैं, या जो हम जैसे एंकर हैं कि हम बाहर बैठ के और सारा सब कुछ करके फिर जाके अपने प्रोग्राम करते हैं, हमें अपनी जदोजहद जो है वो खुद लड़ने के लिए भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि जाहिर बात है इसमें मुख्तलिफ तंजीमें इन्वॉल्व हैं, मीडिया मालिकान जो हैं उनके अपने इसमें स्टेक्स होंगे। तो जो वर्कर सहाफ़ी है, जो पाकिस्तान का आम सहाफ़ी है, आप हैं, मैं, ये हमारे सारे दोस्त सुबह से बैठे हुए हैं, पसीनों में ये शराबूर हैं, तो इनको अपनी लड़ाई मेरे ख्याल है इट्स अबाउट टाइम कि हमें खुद लड़नी पड़ेगी। हक लेना है तो फिर कुर्बानी भी देनी पड़ेगी और जद्दोजहद भी करना पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आदिल शाहजेब साहब की गुफ्तगू सुनी, और भी कुछ लोगों से बात करते हैं, लेकिन यहाँ एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे तो और लोगों की आरा से आपको आगाह करते हैं। बट साहब पहले तो बड़ी मुबारकबाद आपको, बड़ा कामयाब शो किया, और सब लोगों को, बल्कि हुकूमत में जो शामिल लोग थे उनको भी आपने इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर दिया है। तो क्या मैसेज गया, क्या अचीव हुआ आज के धरने से? देखिए, ये पहली बात तो यूनिटी थी। मैं समझता हूँ कि हुकूमत ये समझती थी, बार बार कहती थी कि इतनी PFUJ है, किससे बात करें, और इसी चक्कर में उन्होंने 4 PFUJ और भी बना दी ताकि वो बात करना नहीं चाहते थे। एक तो ये मैसेज चला गया, डिवाइड करके, और वही वो डिवाइड करके, ठीक है। और आज जो सबसे बड़ा इमरान खान की हुकूमत के माथे पे कलंक का टिका रहेगा वो ये है कि पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका है कि सदर पाकिस्तान के खिताब के मौके पर प्रेस गैलरी को ताला मारा गया। तो मैं समझता हूँ कि आज ये जो वाकया हुआ है, ये पाकिस्तान में हमेशा इमरान खान इसको डिफेंड नहीं कर सकेंगे। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि आज तमाम सियासी जमातों का इधर आना और इस बात पे यकजहती का इजहार करना कि वो PMDA किसी सूरत पास नहीं होने देंगे, अगर पास हो गया तो अदालतों में चैलेंज करेंगे, अदालतों में अगर हम जाएंगे तो पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार, HRCP और PFJ पहले ही वहाँ लाइन्स बना चुकी हैं जो इसको चैलेंज करने का ऐलान कर चुकी हैं। तो मेरा हाल है गवर्नमेंट को ये पता चल गया है कि अब इनफ इज इनफ। ये आखिरी इवेंट नहीं है, ये मतलब इब्तिदा है। अब साहब ये क्योंकि RIJ का आज धरना था, ये आज क्योंकि हमने कहा हुआ था कि ना हमारी दरख्वास्त है ना हमारी ख्वाहिश है कि हमारे पास कोई आए, कोई वजीर आए, इसलिए हमने खुद फैसला किया हुआ था कि सदर के खिताब अंदर खत्म होगा, इधर हम धरना खत्म कर देंगे। फिर PFUJ ने 15, 16, 17 को लाहौर में हंगामी तौर पर अपनी फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास तलब कर लिया है। 18 के बाद ये RIJ की कॉल थी, 17 के बाद 18 के बाद PFJ की कॉल होगी, जब पूरे मुल्क में कंट्री वाइड एक एहतजाजी तैयार रहे मुल्कीर एहतजाज के लिए तैयार रहे। इंशाल्लाह ताला उस तहरीक के सामने ना मुशर्रफ ठहर सका, ना ज़ियाउल हक ठहर सका, ना यूब खां और यही ठहर सके, तो ये तो किसी बाग की मूली नहीं है। भट्ट साहब की अल्टीमेटम आप सुन लें, कहते हैं हुकूमत किसी बाग की मूली नहीं है, तैयार हैं, 18 के बाद मुल्कीर एहतजाज करेंगे। अमीर अब्बास साहब, क्यों आए हैं आप इस धरने में, क्या कॉज है और क्या डिमांड है? देखिए, यही मुझे तो 2014 का मंजर यहाँ पे याद आ रहा है इमरान खान साहब का, और वो जो कहा जाता है ना कि अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुतखाने में भगवान बने बैठे हैं। तो मीडिया, अगर इमरान खान साहब की आप कामयाबी में मीडिया का हिस्सा निकालें, वो कम से कम 50% है। अगर आज मीडिया माइनस कर दे इमरान खान से, तो इमरान खान अगले 20 साल भी शायद प्राइम मिनिस्टर न बन सकते पाकिस्तान के। एहसास तो उनको होना चाहिए, ये क्या है? एहसास नहीं है, कोई एहसास दिला नहीं रहा, सुन नहीं रहे, देख नहीं रहे, हुआ क्या है? एक तो तारिक साहब, ये जो ऐवान है ना, इन ऐवानों की फसीलें बहुत बुलंद होती हैं। यहाँ जो आवाजें जाती हैं ना, वो टकरा के वापस आती हैं, वो अंदर बैठने वाले को तक पहुंचती नहीं है। ये खान साहब को आवाजें तब याद आएंगी जब वो 2023 के बाद हमारे साथ यहाँ खड़े होंगे। कल जो इनके साथ हुआ है कैंट इलेक्शन के अंदर, आप पंजाब में देख लें, दूसरे नंबर पर भी नहीं, तीसरे नंबर पर एक पार्टी आ रही है और वो बुजदार ऐसा भारी साबित हो रहा है इनके ऊपर। ये सारी चीजें उनको नजर आ रही हैं। फिर KPK के अंदर जो उन्होंने वोट लिए, वो पहले से कम वोट लिए इन्होंने ये बल्दियाती। फिर आप देख लें
یعنی گورنر سندھ اور صدر پاکستان کا جو حلقہ ہے کلفٹن کا، وہاں سے پی ٹی آئی ہار گئی ہے. تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جن کو نظر آ رہی ہے. وہ چاہتے ہیں سارا نزلہ سارا غصہ جو ہے وہ ہم پہ اتارنے کوشش کریں، اس کو کرٹیل کر دیں. آج کے پروگرام میں آپ نے گفتگو سنی مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی، جو صحافتی تنظیموں کے رہنما ہیں ان کی. اور کنسنسس کیا ہے؟ کنسنسس یہ ہے کہ یہ ایشو اتنا سینسیٹیو اور سیریس ایشو ہے کہ گورنمنٹ کو اس پہ اب نوٹس لیے بغیر یا اس کو سالو کیے بغیر ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. پاکستان کی تمام سول سوسائٹی، تمام صحافتی تنظیمیں، سیاسی تنظیمیں اس ایک نقطے پر مجتمع ہیں کہ پاکستان کے اندر وہ میڈیا کی آزادی پر کوئی کمپرومائز جو ہے وہ نہیں کریں گے. کسی صورت بھی میڈیا کی آزادی جو ہے وہ سلب نہیں ہونے دیں گے. جو ہمارے صحافی کارکن ہیں، صحافتی تنظیموں کے جو لوگ ہیں، ان کا بھی یہی موقف ہے کہ یہ اظہار رائے کی آزادی ہم نے ایک طویل جدوجہد کے بعد حاصل کی ہے اور اسے ہم کسی ایک سیاہ قانون کی بھینٹ نہیں چڑھنے دیں گے. ہم لڑیں گے اپنے حقوق کے لیے، آخر دم تک لڑیں گے اور انشاءاللہ جیت کر رہیں گے. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.